कहाँ गया? Good morning. So good morning to all of you. Whatever I discussed in the last class, with regard to that, is there any doubt? Last class में देखिए जो भी हमने डिस्कस किया था, उसको लेके दोस्तों कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी. Then I will start with next part of our discussion that we have been doing since last class. Same thing I will continue. First 10-15 minutes, I will give you people a brief that whatever I discussed in the last class, वहां तक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, उसे लेके अगर कोई डाउट है दोस्तों पूछ सकते हैं. सो देखिए लास्ट क्लास आई स्टार्टेड विद दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट डर्कीम, दैट इज हिज स्टडी ऑन सुसाइड. सो लास्ट क्लास में देखिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसे थोड़ा सा मैं आपके साथ रिपीट कर दे रहा हूं कि व्हाट आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास. हियर आई डिस्कस दैट हाउ ही ट्राइड टू प्रोवाइड हिज theory on suicide. Then I discussed with you people that Durkheim came up with a typology on suicide in terms of altruistic suicide, in terms of egoistic suicide, fatalistic suicide, anomic suicide. इनका एक इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में दिया था और सारी चीजों को देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं कि why this particular work of Emile Durkheim is regarded as a very important work, because for the first time you will find elaboration of his scientific method. जिस साइंटिफिक मेथड की बात मैं बार बार आपके साथ बोल रहा था कि अर्ली फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन, पॉजिटिव साइंस डिसिप्लिन, और दे ट्राइंग टू implement a positivistic approach. So this is one classic work of Emile Durkheim where he tried to elaborate scientific methods while studying any social phenomena, while studying any social issue, social problem. Then it is also a classic example of his causal explanation, his positivistic approach that I discussed with you people. और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब डर्कीम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ले रहे हैं, so what were the reason because of which Durkheim is preferring this particular topic as a subject of his स्टडी, सोशियोलॉजिकल रिसर्च. सो ऐसे मैंने बहुत सारी रीजंस आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. जल्दी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज ड्रामेटिक इंक्रीज इन सुसाइड रेट इन यूरोपियन सोसाइटी. दूसरा मैंने आपके साथ ऐसा डिस्कस किया कि सिंस डर्कीम वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, सो सुसाइड जो कि कल तक टिल नाउ विच वाज बीइंग रिगार्डेड एज a personal act, a psychological phenomena, subject matter of psychology, if we using positive science methodology, using sociological method, if you will be able to prove that it is not the subject matter of psychology, rather it is a social phenomena, rather it is a social fact, then probably you will be able to get much required respect, acceptability for sociology as a distinct discipline, जिसको फ्रांस में एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कौन? एमिल डर्कीम. एंड थर्ड रीजन आई एक्सप्लेन यू कि यहां पे पॉजिटिविस्टिक मेथड आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि गुड इंपीरिकल डाटा, फैक्चुअल डाटा related to this particular phenomena was available in European society. So because of these three reasons, so if UPSC asks you that why Durkheim made up his mind to research this particular sociological phenomena or suicide as a phenomena, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि before becoming sociologist, before becoming any intellectual, first we are member of society. So whatever happens surrounding to us, family में, while growing, in neighborhood में, in society in which, in state in which you are living, definitely it will have some impact on the mindset of such intellectual, and because of that he is choosing this particular matter as a subject matter of his sociological research. After that what I discuss, ये डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोग को बताया कि कैसे डर्कीम का कहना है कि सिंस इट इज अ पॉजिटिविस्टिक स्टडी, जहां पे मैं अपने पॉजिटिविस्ट मेथड्स को जो उन्होंने बताया रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया. तो पहला उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, प्रोबेबली ही इज कंसिडरिंग सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट. एक डाउट पूछा है दोस्त ने, ठीक है बता रहा हूं. देखिए आपने ही पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सो देखिए व्हाट आई एम सेइंग
कि फर्स्ट डर्कीम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट विल बी दोस केसेस ऑफ डेथ, क्योंकि उनका कहना था कि स्टडी ऑफ एनी सोशल फैक्ट शुड बी एज डिफिनेटिव एज पॉसिबल. फर्स्ट टू डिफाइन द प्रॉब्लम, first to define the act, first to define the social institution that you are going to study, and because of that, first what Durkheim is doing is trying to define that these are those cases of death that will come under category of suicide, not any case of death, but how he is defining that all those cases of death resulting directly or indirectly from the positive or negative act of victim that he knows will produce the same effort. So एक फ्रेंड ने पूछा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है. देखिए पॉजिटिव एक्ट का मतलब यह है एक्ट ऑफ कमीशन, और नेगेटिव एक्ट का मतलब है एक्ट ऑफ ओमिशन. एक्ट ऑफ कमीशन मींस आप कुछ कर रहे हैं, आप जा रहे हैं पॉइजन खरीद रहे हैं बाजार से, उसको लाके पी रहे हैं, खा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्ट, इससे आपकी डेथ हो रही है. और दूसरा क्या है नेगेटिव एक्ट, जिसमें कुछ न करने से आपकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है. जैसे कुछ दवाएं जो आपके लिए काफी इसेंशियल थी आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, उन दवाओं को लेना आपने बंद कर दिया और उससे आपकी क्या होगी, डेथ होगी. तो वन एक्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड एक्ट इज नेगेटिव. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी देखिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक तो वो है कि जब आप मरना चाहते नहीं है बट फिर भी आपको सुसाइड करना पड़ रहा है, और दूसरा है दैट यू आर विलिंग टू टेक योर ओन लाइफ, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली. ठीक है. सो एज अ मैटर ऑफ कंपल्शन, डिप्रेशन, सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल केसेस ऑफ डेथ resulting directly or indirectly from the positive or negative act of victim himself that he knows will produce the end result, that is death of that victim. ये बात देखिए कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसी को देखिए ब्रीफ में बस आपको रिवाइज करा दे रहा हूं. वॉट एवर आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. आफ्टर दैट, सिंस इट इज अ पॉजिटिविस्टिक रिसर्च, डर्कीम ने इसके बारे में एक लार्ज स्केल डाटा कलेक्ट किया, इंपीरिकल डाटा कलेक्ट किया, और ये इंपीरिकल डाटा उन्होंने कलेक्ट किया फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर, 30 साल का, 1840 से लेके 1870 तक का डाटा कलेक्ट किया किसने, एमिल डर्कीम ने, फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज फॉर दोज केसेस ऑफ डेथ विच वर बीइंग रजिस्टर्ड एज सुसाइड. एंड व्हाट वाज दैट ऑफिस, मैंने आपके साथ डिस्कस किया. देयर यूज्ड टू बी वन ऑफिस इन यूरोपियन कंट्रीज, कॉरोनर्स ऑफिस. कॉरोनर्स ऑफिस से ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. अराउंड 26,000 केसेस ऑफ सुसाइड से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया किसने, डर्कीम ने, और फिर इस डाटा को प्रोसेस किया फॉर 8 मंथ. एट दैट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कंप्यूटर वाज नॉट दैट मच कॉमन. 1897 की बात है, कैलकुलेटर्स, स्टैटिस्टिक्स वर नॉट दैट मच कॉमन. सो मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. पहला तो जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि देयर वर सम एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एंड व्हाट वर दोज एग्जिस्टिंग थ्योरीज. Existing theories were related with there were certain existing theories, and these existing theories were related with race, geography, climate. हमने बात किया था racial theory, geographical theory, psychological theory, alcoholic theory. Then such theories were discarded, rejected by whom? एमिल डर्कीम, जिनका कहना है कि रेस, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, साइके, ये सब फैक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से सुसाइड हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, जिसका एग्जांपल मैंने आपके साथ लिया था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस का एग्जांपल लेंगे और जर्मनी का एग्जांपल लेंगे, सो ए रिमार्केबल कॉन्स्टेंसी डर्कीम फाउंड. यहां पे जो सुसाइड्स हो रहे हैं जर्मनी में, दैट इज इन द रेंज ऑफ 300. यहां पे जो सुसाइड रेट्स हो रहे थे दैट वर इन द रेंज ऑफ 3000. सो विद इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, इट मे बी फ्रांस, इट मे बी जर्मनी, across the year, over a period of year, there was remarkable constancy in the rate of suicide. And if society changes, rate of suicide also changes. As you are moving from French to German society or German to Russian society, rate of suicide was also changing. So that's what he was saying, कि there are certain determining forces, and these determining forces that are not present in race, they are not present in climate, they are not present in geography, they are not present in alcohol, they are not present in your mental psyche, they are present in structure of society. So this high rate or low rate of a particular society is socially determined, and because of that, what Durkheim was saying, कि suicide is socially determined phenomena, it is not individual phenomena. अगर ये इंडिविजुअल फिनोमिना होता तो आपको एक कॉन्स्टेंसी मिलता अक्रॉस द सोसाइटीज, बट शायद ऐसा नहीं हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये 3 कंक्लूजन्स मैंने आपके साथ
डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. These 3 conclusions I have discussed. पहला वो बोल रहे हैं, first conclusion that I discussed in the last class, the first conclusion was that stability of the rate, ये जो stability of rate है, ये शो कर रहा है कि भले ही इंडिविजुअल मोटिव वेरी कर रहे हैं केस टू केस, केस 1, केस 2, केस 3, इंडिविजुअल मोटिव्स आर वेरिंग, बट एवरेज जो रेट है, एवरेज जो कोटा है 1840 का, 1840 का, 1841 का, 1842 का, दैट कोटा रिप्रेजेंट अ फैक्चुअल ऑर्डर, एंड दैट फैक्चुअल ऑर्डर इज अराउंड 300 इन जर्मन सोसाइटी, दैट फैक्चुअल ऑर्डर और कोटा इज अराउंड 3000 इन फ्रेंच सोसाइटी. सो दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन. दूसरा कंक्लूजन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो रेट्स हैं ये डिफर कर रहे हैं बिटवीन सोसाइटीज और अमंग सोसाइटी, बट विद इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर, विच मीन्स एवरी सोसाइटी प्रोड्यूसेस अ कोटा, मतलब दे आर रिमार्केबली स्टेबल, कांस्टेंट हैं. फ्रेंच सोसाइटी में, जर्मन सोसाइटी में, रशियन सोसाइटी में, भले ही अक्रॉस सोसाइटी दे आर वेरिंग, बट फॉर ए पर्टिकुलर सोसाइटी दे आर व्हाट, remarkably stable. That is another conclusion. Third conclusion, he was saying that this suicide rate presents a factual order which is independent of individual motive. तुमने किस वजह से किया, उसने किस वजह से किया, that is different thing. But every society is producing a quota of suicide. ये 3 conclusion दोस्तों आपको समझ में आ रहा है. If you have any doubt, please ask me. All these things I have already discussed in the last class. इसलिए काफी शॉर्ट तरीके से मैं उसको आपको बस रिवाइज करा रहा हूं. और उसके बाद हमने ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया कि देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन सोशल स्ट्रक्चर दैट वी आर रेफरिंग एज, व्हाट वाज दैट, कि सोशल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट था, दैट वी आर रेफरिंग एज सुसाइडोजेनिक करेंट. एक टर्म मैंने यहां पे यूज किया, दैट सुसाइडोजेनिक करेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच कॉन्स्टेंसी ऑफ सुसाइड रेट, जिसको डरकीन सोशल रेट ऑफ सुसाइड बोल रहे हैं. ही इज नॉट इंटरेस्टेड in studying this phenomenon of suicide at an individual level, rather he is interested in studying this phenomena at collective level, societal level, group manifestation, because study of social fact should be at the manifestation at collective level, not at individual level. ये बात हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस की थी. और आफ्टर दैट डरखीम ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा दैट ही कलेक्टेड, जब उस डाटा को डरखीम प्रोसेस कर रहे हैं तो व्हाट ही इज गेटिंग, हमने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं. एंड व्हाट आर दीज ऑब्जर्वेशंस? दीज ऑब्जर्वेशंस आल्सो आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास. ये ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि उन्होंने ऐसा पाया कि मेन आर मोर प्रोन टू सुसाइड देन वुमेन, देन मैरिड, then married with children, without children, then Protestants and Catholic, then war time and peace time. All these observations that he is making, on what basis? देखिए दोस्तों, ये जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं है. द डाटा दैट ही हैज कलेक्टेड, उस डाटा के बेसिस पे ही इज मेकिंग सच एन ऑब्जर्वेशन. दिस पॉइंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, दैट आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास. तो उसके बेसिस पे 2 ग्रुप्स ड्रॉ कर रहे हैं. कौन? एमिल डर्की. एंड व्हेन ही हैज ड्रॉन दीज 2 ग्रुप्स, अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी को आप देखें, जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इफ यू सी दिस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो विल फाइंड that one group is consisting of Protestants, peacetime, unmarried, without children and men, and there is another group. तो जरूर किसी एक ग्रुप में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इस ग्रुप में सुसाइड रेट ज्यादा है, और जरूर इस ग्रुप में there is something because of that suicide rate is less. What he concluded, उनका कहना है कि that thing is actually solidarity, that thing is actually integration. So integration या solidarity वो चीज है, that is something present in social structure. Because of that, one group was showing a remarkably less rate of suicide and another group was showing remarkably higher rate of suicide. So friend, that I discussed till now. यहां तक मैंने आप लोग को समझाया था कि अगर भाईचारा ज्यादा है, solidarity ज्यादा है, then rate of suicide will be less. If social integration is less, solidarity is less, then rate of suicide will be high. This point you are able to understand or not? यहां तक कोई डाउट? जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन करके 2 फोर्सेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रेट और लो रेट ऑफ सुसाइड. इसके बेसिस पे एक टाइपोलॉजी डरकीम ने दी थी, दैट आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास. बट वॉट एवर आई टोल्ड यू पीपल टिल नाउ,
with regard to that. Is there any doubt? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Then I will start with today's lecture. Till now I just tried to revise you whatever I discussed in the last class. देखिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है. थिंग्स आर अनफोल्डिंग. सो इट्स नॉट लाइक दैट यू नीड टू रिमेंबर, एग्जाम में याद करके जाना है, ऐसा नहीं है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करूं और आपको ये बताऊं कि मुझे क्या पता है. दैट इज नॉट द मोटिव. द मोटिव इज दैट यू शुड डेवलप अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग and as per the need of the question that I will discuss today, you will be able to answer in examination hall. That is my motive, that you should develop a kind of understanding जहां पे आपको याद करने जैसा न रहे. There are certain names that you may probably remember, otherwise this thing is clear or not. देखिए कुछ लोग yes बोल रहे हैं, कुछ okay बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं. Please give your feedback, because till now if you will say कि it is all right, then I will proceed further. यहां तक कोई डाउट फ्रेंड्स? टिल नाउ इफ यू पीपल हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. देखिए डोंट कीप दीज डाउट्स इनसाइड योर हर्ट. मैं नहीं जान पाऊंगा, छुपा के मत रखिए. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यू मे सी, हम आपके साथ ऐसा बोल रहे थे कि रेट ऑफ सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू degree of solidarity or integration. And now on the basis of integration regulation, Durkheim came up with a kind of typologies of suicide. और ये जो typologies हैं, they are altruistic suicide, egoistic suicide, fatalistic suicide and anomic suicide. One by one I will explain these 4 types of what? Suicide. But before that I just want to ask you people, just want to know from you people कि जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, अभी तक जो मैंने रिवाइज कराया, उस हद तक कोई डाउट है आपके माइंड में तो प्लीज आस्क. नहीं दोस्त, मैं ऐसा बोल रहा हूं, रेट ऑफ सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे बॉयल्स का लॉ, बॉयल लॉ देख पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने डेफिनेटली थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़ा होगा. फिर से देखिए, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, फिर से देखिए यहां पे, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली, आई एम सेइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी. दैट हाई रेट ऑफ सुसाइड इन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटीज? लो डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी. लो रेट ऑफ सुसाइड इन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी? हाई डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी. दिस पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? फिर से देखिए डायग्राम, फिर से ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि रेट ऑफ सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी. ये डाउट आपका क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? जहां पे सॉलिडारिटी ज्यादा होगी फ्रेंड, वहां पे सुसाइड रेट कम होंगे. जहां पे भाईचारा कम होगा वहां पे सुसाइड रेट ज्यादा होंगे. दिस पॉइंट आई एम रेजिंग एज पर डर्कीम. दैट्स व्हाट डर्कीम इज कंक्लूडिंग. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी. ये बात समझ पा रहे हैं? नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. This point you are able to understand, then I will proceed. प्लीज बताइए, ये आपका जो डाउट है मैंने क्लियर किया या नहीं? फाइन, समझ में आ गया होगा. तो देखिए ये 4 टाइपोलॉजीज, वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू पीपल. परहैप्स वन आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, उसको मैं रिपीट कर दूंगा. 4 तरह की सुसाइड की बात कर रहे हैं. पहला आपने बोला कि रेट ऑफ सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी. मतलब इसका यह है कि इफ योर इंटीग्रेशन विद सोसाइटी इज लेस, अगर आपका सोसाइटल नॉर्म्स के साथ, सोसाइटल वैल्यूज के साथ, सोशल मोरल के साथ इंटीग्रेशन लेस है, देन चांसेस आर हाई दैट यू विल कमिट सुसाइड. सच केसेस ऑफ सुसाइड डर्कीम रिफर्ड एज फ्रेंड ईगोइस्टिक सुसाइड. लास्ट क्लास में भी मैंने इसका आपको एक ब्रीफ दिया था कि ईगोइस्टिक सुसाइड वो टाइप ऑफ सुसाइड है व्हेन पर्सन इज नॉट वेरी मच इंटीग्रेटेड विद सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स, सोशल बिहेवियरिज्म. उनके साथ अब अटैच नहीं है,
एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, अपने मेट के साथ, whom you love, with whom you have affair, बट फैमिली या जो सोसाइटी है आपकी, वो आपको बोलती है कि यू शुड मैरी विद इन योर कास्ट, यू शुड मैरी विद इन योर रिलीजन, यू शुड मैरी विद इन योर कम्युनिटी। इस तरह के आपको गाइडेंस होता है कि ये सोसाइटल वैल्यूज हैं कि वन शुड मैरी विद इन हिज कास्ट, वन शुड मैरी विद इन हिज रिलीजन, बट यू हैव मेड अप योर माइंड। आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियंस है, योर इंडिविजुअल कॉन्शियंस इज एट कन्फ्लिक्ट विद द कलेक्टिव कॉन्शियंस। सो आपके गांव में, आपके नेबरहुड में, आपके कस्बे में, जहां भी आप रह रहे हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस दैट अ पर्सन शुड मैरी विद इन हिज कास्ट, a person should marry within his religion. But since you have made up your mind as per your own wish, your own individual conscience, so यहाँ पे दोस्त क्या हो रहा है, your individual conscience is at conflict with collective conscience. Your individual conscience is at war with collective conscience. Your individual conscience wants something else. Collective conscience wants something else. And in such conflict, in such war, in such fight, ultimately you decided to commit suicide. You are committing suicide, and by doing that thing you are asserting, I don't care, I don't accept these values, I don't accept such kind of moralism, I don't accept such kind of norms कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कास्ट में ही शादी करनी चाहिए, किसी भी पर्सन को अपनी कम्युनिटी में मैरिज करना चाहिए, I don't accept. Rather, my individual conscience is right that we should marry someone whom we like, whom we love. ऐसा जो आपका इंडिविजुअल कॉन्शियंस है, आपका एक वे ऑफ रिजेक्शन है. सो यू कमिटिंग सुसाइड इज नथिंग बट इट इज अ वे ऑफ रिजेक्टिंग कलेक्टिव कॉन्शियंस कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये वैल्यूज, ये नॉर्म्स, ये परिवार, ये सम्मान, ये स्टेटस, आई डोंट केयर. एंड बाई डूइंग सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड, you are trying to prove superiority of your individual conscience over what? Collective conscience, by rejecting society, which is dominated by collective conscience, which is regulated by collective conscience, where behavior is regulated by these norms. By committing suicide, your individual conscience is rejecting such kind of collective conscience, because collective conscience का मतलब क्या था? Collective conscience is that is diffused throughout society, शेयर्ड बाई एवरेज मेंबर ऑफ सोसाइटी. सो सुसाइड करके आप इस कलेक्टिव कॉन्शियंस को रिजेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि योर वे ऑफ थिंकिंग वाज राइट, योर वे ऑफ कॉन्शियंस वाज सुपीरियर. दैट इज वन काइंड ऑफ सुसाइड दैट आई प्रोबेबली डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, ईगोइस्टिक सुसाइड. ये बात समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? This point is clear. Second thing I am saying, when your integration with society is very high. पहला egoistic मैंने आपको बताया, जब आपका सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन कम है, सोशल नॉर्म्स के साथ, सोशल वैल्यूज के साथ, सोशल मोरल के साथ. दूसरी सिचुएशन आई वॉज गिविंग यू पीपल व्हेन यू आर हाईली इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी. हाईली इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी से मेरा मतलब यह है कि यू फाइंड नो डिफरेंस between you as an individual and society. So there is no difference between societal goals and your goals. You are coming in line with societal norms, you are coming in line with societal values, you are coming in line with societal morale, and in that process, in order to achieve some societal goals, some societal values, some societal norms, you are ready to sacrifice your life. Example मैंने आपको दिया था जौहर का, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था सती का, एग्जाम्पल मैंने आपको उस फिदाइन का भी दिया था जो अपने बॉडी पे बॉम्ब बांध के सुसाइड स्क्वाड का मेंबर बन जाता है. एलटीटी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. आप हाईली इंटीग्रेटेड हैं फॉर कॉज ऑफ तमिल इलम. देयर यूज्ड टू बी एन एलटीटी, प्रोबेबली राइट नाउ इट इज नॉट देयर, बट एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था. दे वर फाइटिंग फॉर ए सेपरेट तमिल होमलैंड. सो दैट यूथ हैज आइडेंटिफाइड with that imaginary Tamil homeland to that extent कि उस गोल में और उसके अपने लाइफ में वो कोई डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है. ही इज कंसिडरिंग कि हिज लाइफ इज एन इंस्ट्रूमेंट. उसकी जो लाइफ है वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है टू अचीव दैट सोसाइटल गोल.
and by sacrificing his life, by becoming part of that society squad, perhaps he is helping in achievement of societal goal. No remorse, no guilt. You don't think any difference in yourself and society. That is high integration. And in such highly integrated society, if you are sacrificing your life for achievement of that societal goal, community goals, collective goals, that kind of society I was referring as altruistic society. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? This point is clear or not? डिफरेंस बिटवीन, देखिए एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा और सारा याद करके जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ हाई इंटीग्रेशन, लो इंटीग्रेशन, हाई रेगुलेशन एंड लो रेगुलेशन. इन दैट टर्म यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग. याद करने ऐसा नहीं है, चीजें अनफोल्ड हो रही हैं. कैसे डरकीम बता रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिए. द डिफरेंस बिटवीन इगोइस्टिक एंड एल्ट्रुस्टिक सुसाइड इज क्लियर और नॉट? देन आई विल प्रोसीड फर्दर. I hope that this much you are able to understand. Then on regulation part, regulation की वजह से किस तरह से सुसाइड रेट हो सकते हैं. If regulation is the second major dimension, Durkheim is saying that very often whenever any breakdown of norm takes place, any sudden change takes place, such suddenness of change, one consequences may be a kind of anomic suicide. Anomic suicide is the third typology that I am going to discuss with you people that may take place when normative deregulation is there, when norms break down. और ये societal norms, friend, कब break down करेंगे? ये societal norms तब break down करेंगे जब कोई sudden change होगा. जब सडन चेंज होगा, एक नया तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होगा, नए नॉर्म्स आएंगे, पुराने नॉर्म्स भी हैं, क्लैश ऑफ नॉर्म्स है, ओल्डर नॉर्म्स आर येट टू गो, न्यू नॉर्म्स आर येट टू गेट एस्टैब्लिश. समहाउ नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन टेक्स प्लेस, एंड व्हेनेवर सच नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन टेक्स प्लेस, वन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सडन चेंज कैन बी सुसाइड. लाइक क्रॉप फेलियर हो गया, हार्वेस्ट फेलियर हो गया, सडनली रिसेशन आ गया, रिच थे और सडनली आप काफी पुअर हो गए, पुअर थे और बाकी काफी ज्यादा इम्पोरिशमेंट हो गया. सो देखिए, पॉवर्टी की वजह से सुसाइड नहीं हो रहा है, सुसाइड बिकॉज ऑफ सडननेस ऑफ चेंज की वजह से हो रहा है. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म कॉइन किया डरकीम ने, एक नया टर्म कॉइन कर रहा है जिसका नाम है एनोमी. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई एनोमी ही इज यूजिंग एज अ टर्म एंड देन हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग एनोमिक सुसाइड. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. समझने की कोशिश करिएगा. यहां तक आप लोग बोल रहे हैं क्लियर है, वेरी गुड. एनोमी एक टर्म कॉइन कर रहे हैं एमिल डर्कीम, एंड एनोमी से बोल रहे हैं इट इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन. नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन से फ्रेंड्स मेरा मतलब यह है कि व्हेन सोसाइटल नॉर्म्स दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट पर्सनल कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल. सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो रेगुलेट करने में सक्षम नहीं है. व्हाट? पर्सनल कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल. इन नॉर्म्स की जरूरत ही क्यों है? वाई वी नीड नॉर्म्स? ये पहले समझने की कोशिश करिए, तब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन क्या है. देखिए, ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स हैं दोनों में डिफरेंस है. इफ यू सी लोअर डिग्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, देयर इज वन डिफरेंस. ये जो एनिमल्स हैं दोस्त, इनकी डिजायर्स लिमिटेड है, लिमिटेड डिजायर्स है. लिमिटेड डिजायर से मेरा मतलब यह है कि अगर आपका कोई पेट डॉग है और वो हंग्री है, आपने उसे फूड ऑफर किया, शुरू में उस फूड पे वो काफी तेजी से जंप करेगा एज इफ उसने कभी कुछ खाया ही नहीं है, काफी हंग्री है वो. बट आफ्टर ईटिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दैट फूड, व्हेन ही इज सेटिस्फाइड, सेटिएटेड, उसके बाद आप फिर से उसके सामने कुछ रख दिए खाने के लिए, नहीं खाएगा. इसको आप करके देख सकते हैं. इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए बिहेवियरलिज्म में, साइकोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए. मैं आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं कि ये जो एनिमल्स हैं इनकी नीड्स लिमिटेड है. एक बार पेट भरने के बाद इनके सामने आप कुछ रख दिए, परहैप्स दे विल नॉट ईट. आपकी जो नीड है पैसे कमाने की, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? पहले अपने लिए, फिर बच्चों के लिए, फिर स्विस बैंक में भी रख लेते हैं, फिर अफ्रीका में जाके गोल्ड माइन, मतलब
अनलिमिटेड नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, अनलिमिटेड डिजायर्स। और फ्रेंड्स, अगर सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग्स की अनलिमिटेड डिजायर्स रहेंगी, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्लैश ऑफ डिजायर्स होगा। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, society lays down some norms, society lays down some rules and regulation so that society can survive. So society कुछ norms, कुछ मोरल, कुछ rules, कुछ रेगुलेशन ड्रॉ करता है, जिससे आप कि ये जो अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, देखिए अनलिमिटेड डिजायर्स क्या है, लिमिटेड डिजायर्स क्या है, आप बोलेंगे सर आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कहां पे वो लाइन है कि यहां के बाद जो डिजायर है वो एक्स्ट्रा डिजायर है। तो ये उसके लिए कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक ड्रा कर सके, आप कोई लाइन ड्रॉ करें, बट सोसाइटल मैकेनिज्म है। सोसाइटी कुछ नॉर्म्स, मोरल, रूल्स, रेगुलेशन, इनकम टैक्स रिलेटेड ये सब नॉर्म लगाते हैं, जिससे आपकी डिजायर्स को रेगुलेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पुअर हैं उन्हें कुछ बेनिफिट मिले, रिच से टैक्स लेते हैं, ऐसा कुछ करके बैलेंस करते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, सच नॉर्म्स दे हेल्प्स in organization of society. In absence of norms, अगर ये norms ना हो दोस्तों, तो सोसाइटी में chaos होगा, डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, कंफ्लिक्ट होगा, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं? जब भी कोई सडन चेंज होता है समाज में, कोई सपोज मिलिट्री कू हो गया, सपोज रिसेशन आ गया, सपोज कोई क्रॉप फेलियर हो गया किसानों के केस में, सो देखिए ऐसा कोई सडन चेंज एक केओटिक सिचुएशन लाता है, एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन लाता है। उस स्टेज को डरकीम एनोमी बोल रहे हैं। एनोमी मीन्स ए स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, नॉर्मेटिव ब्रेकडाउन। समाज में नॉर्मेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है, एक नॉर्मलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन, सच नॉर्मेटिव ब्रेकडाउन कैन बी one particular kind of suicide that he is referring as anomic suicide. Anomic suicide इस वजह से नहीं हो रहा है कि आप गरीब हो गए, इस वजह से हो रहा है कि आप सडनली गरीब हो गए। और गरीबी नहीं, सडनली रिच होने से भी लोग सुसाइड कर लेते हैं कई बार। देयर आर इंस्टेंसेस। सो सडन रिचनेस, सडन पॉवर्टी, इट मे लीड टू व्हाट? एनोमिक सुसाइड। दैट इज वन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनोमी दैट सुसाइड में टेक प्लेस। तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स कॉटन की क्रॉप में इन्वेस्ट करते हैं, क्रॉप फेलियर हो जाता है विदर्भा में, तेलंगाना में, एंड फार्मर्स दे कमिट सुसाइड। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दोस एनोमिक सुसाइड। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सडनली कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया उस समय, दे बर्न देमसेल्फ। ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप आर्काइव्स में इंटरनेट पे देख सकते हैं। सो बर्निंग योरसेल्फ इन पब्लिक लाइट, दैट वाज अ काइंड ऑफ एनोमिक सुसाइड। एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं आप बेसिकली, कि ये जो नया चेंज आ गया, सडन चेंज हुआ है, उसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सच चेंज विच इज सडन चेंज, वन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सडननेस ऑफ चेंज इज एन एनोमिक सुसाइड। ये बात सोच पा रहे हैं? एनोमिक सुसाइड तब होगा जब स्टेट ऑफ नॉर्मेटिव ब्रेकडाउन होगा, सोसाइटी के नॉर्म्स लोगों को रेगुलेट करने में सक्षम नहीं होंगे, एबल नहीं होंगे, देन सच केसेस ऑफ सुसाइड विल टेक प्लेस। दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? एनोमिक सुसाइड का एग्जांपल, एनोमिक सुसाइड समझ पा रहे हैं नहीं आ रहा है? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एग्जांपल ऑफ एनोमिक सुसाइड? Sir, video is back. That I'm not able to understand. दीपक, ये क्या लिख रहा है? ये बोला वीडियो इज बैक। Such example of anomic suicide you are able to understand or not? Anomic suicide, altruistic suicide, इगोइस्टिक सुसाइड, ये तीन सुसाइड देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। टिल हियर इफ यू पीपल हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। जो वीडियो रिपीट हो गया उसको हम फिर से देख रहे हैं, आवर टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन दैट।
Then the last case that I want to refer you people, that is the idea of a fatalistic suicide. अब देखिए fatalistic suicide क्या है? डरकीम बोल रहे हैं कि हालांकि fatalistic suicide का कोई contemporary example उनको नहीं मिल रहा है, even though he did not get any contemporary example of fatalistic suicide at that time of Europe, but बोल रहे हैं कि एंशियंट यूरोपियन सोसाइटी में एंशियंट जो रोमन और ग्रीक स्लेव हुआ करते थे, हु वर कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर्स, दे वर अंडर सो मच रेगुलेशन, वो इतने ज्यादा रेगुलेशन में रहते थे, बिकॉज ऑफ सच हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशन, मेनी ऑफ देम दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड. Such cases of suicide, when because of high degree of regulation you are committing suicide, such cases of suicide he is referring as a fatalistic suicide. So this thing you are able to understand, friend, or not? Egoistic suicide, altruistic suicide, fatalistic suicide and anomic suicide. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? This much you are able to understand or not? ठीक है, देखिए एक फ्रेंड ने ऐसा पूछा है कि एनोमिक सुसाइड क्या है, ये आप पूछना चाह रहे हैं. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. वीडियो आपको टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सही है. फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू पीपल इगोइस्टिक सुसाइड. दैट इज क्लियर और नॉट? वन बाय वन आई एम गोइंग. जहां पे डाउट होगा आई विल अगेन रिपीट. इगोइस्टिक सुसाइड समझ में आया? एल्ट्रुस्टिक सुसाइड समझ में आया? एनोमिक सुसाइड समझ में नहीं आया. देखिए एनोमिक सुसाइड के केस में व्हाट आई वाज सेइंग दैट व्हेनेवर इन सोसाइटी नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन टेक्स प्लेस. नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन क्या है? जब सोसाइटल नॉर्म्स दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, सच सिचुएशन आई एम रिफरिंग एज नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन, और सच सिचुएशन आई एम रिफरिंग एज ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म्स. और ये होगा कब? इट विल टेक प्लेस जब भी सोसाइटी में, समाज में कोई सडन चेंज आएगा, कोई सडन इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, कोई सडन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो गया, सडन क्रॉप फेलियर हो गया, हार्वेस्ट फेलियर हो गया. ड्यूरिंग सच टाइम फ्रेंड, सच सडननेस ऑफ चेंज में टेक सम लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स में एंड अप देयर लाइफ as they are not able to adjust with such sudden change. So मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब रिजर्वेशन आया था 1989 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, बहुत सारे यूथ बिलोंगिंग टू जनरल कम्युनिटी दे हैव कमिटेड सुसाइड. वो इस नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे. दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट विद दिस न्यू सिचुएशन कि अब क्या होगा, नया समाज बन गया. सो योर इनेबिलिटी टू एडजस्ट ड्यूरिंग सच सडननेस ऑफ चेंज may lead to some cases of suicide. Farmer suicide का मैंने एग्जांपल दिया. These cases of suicide, they are taking place as a result of suddenness of change. ये जो अचानक चेंज आ रहा है और जिसकी वजह से एक नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन हो रहा है, एक नॉर्मेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से यू आर कमिटिंग सुसाइड. सच केसेस आई वाज रिफरिंग एज एनोमिक सुसाइड. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? एनोमिक सुसाइड समझ पा रहे हैं दोस्त या नहीं? प्लीज गिव योर फीडबैक, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर यूथानसिया क्या है. देखिए यूथानसिया नई चीज है. यूथानसिया वाज नॉट एट दैट टाइम. डरकीम के टाइम पे यूथानसिया नहीं था, आज यूथानसिया है. ठीक है, समझने की कोशिश करिए. यूथानसिया मीन्स पैसिव किलिंग, जिसमें आप अपनी विश शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ ले ली जाए बाय रिमूविंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम. सो दिस थिंग वाज नॉट देयर एट दैट टाइम. जिस समय की बात डरकीम कर रहे हैं उस समय यूथानसिया नहीं था. आज की डेट में यूथानसिया है. आप उसको मतलब इस टाइपोलॉजी में तो नहीं है, आप उसको रैशनल सुसाइड बोल दिए. क्या बोल दिए? रैशनल सुसाइड. सो देखिए नॉट ऑल केसेस ऑफ सुसाइड वर बीइंग कवर्ड बाय डरकीम. जो 26,000 केसेस ऑफ सुसाइड की स्टडी की है उसके बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड ही इज गिविंग. दैट इज नॉट द मोस्ट एग्जॉस्टिव केस कि आप कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करिए. इसने जो किया वो किस कैटेगरी में आएगा. तो देखिए हर केस शायद कवर ना हो पाए, बट एक टाइपोलॉजी बना रहे हैं,
इगोइस्टिक, एल्ट्रुस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक. जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी कि कैसे विथ रेफरेंस टू इंटीग्रेशन और विद रेफरेंस टू रेगुलेशन देयर कैन बी सुसाइड इन हाई इंटीग्रेशन, इन लो इंटीग्रेशन, इन हाई रेगुलेशन एंड लो रेगुलेशन. ये बात दोस्तों समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? This thing you people are able to understand or not? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. After discussing these things, these 4 types of suicide, I will start with criticism part. तो इस तरह का जो सोशल डिटर्मिनिज्म डरकीम शो कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू कंसीडर सुसाइड. देखिए इसको फिर से मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है. इगोइस्टिक, एनोमिक, एल्ट्रुस्टिक एंड फैटलिस्टिक. इगोइस्टिक तब हो रहा है दोस्त जब आपके इंटीग्रेशन सोसाइटी के साथ लेस है, जब आपका जो बॉन्ड है सोसाइटी के साथ वो वीक हो रहा है एंड इंडिविजुअलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इगोइस्टिक सुसाइड के चांसेस हैं. एल्ट्रुस्टिक में आपको बोला था कि जब आपका जो बॉन्ड है ग्रुप के साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, यू आर नॉट फाइंडिंग एनी डिफरेंस इन इंडिविजुअल गोल्स एंड सोसाइटल गोल्स. एट दैट टाइम altruistic suicide will be there. Anomic में बोला था कि when individuals are not being regulated by norms and values of society, in such cases बहुत less regulation or absence of normative regulation, that is leading to suicide. That I was referring as anomic suicide. And last type that I discussed, that is too much regulation. अगर regulation काफी high होगा, personal कोई freedom नहीं रहेगी, you are being considered as a property of master, being a slave, you may end up taking your own life, and such cases were coming in category fatalistic suicide, anomic suicide, egoistic suicide, altruistic suicide. इनमें कोई डाउट है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट विद रिगार्ड टू दैट. यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद क्रिटिसिज्म ऑफ डरकीम. मैं आपके साथ क्रिटिसिज्म डिस्कस करूंगा डरकीम का कि किस तरह से क्रिटिक्स ने सप्लीमेंट किया है, डरकीम को क्रिटिसाइज किया है. सो दिस एस्पेक्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू पीपल कि हाउ सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम सोशल रियलिज्म, जिसमें एक ऐसी फिनोमिना जिसको अभी तक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर माना जाता था, एक ऐसी फिनोमिना जिसको एक पर्सनल एक्ट माना जाता था, उस पर्सनल एक्ट को उस एक्ट को जिसको अभी तक सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता था, सोशल रियलिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, सोशल फैक्ट कंसीडर कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट शुड बी इन प्रीसीडिंग सोशल फैक्ट इन कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन. दैट डरकीम इज सेइंग इस पॉइंट ऑफ व्यू को, जहां पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स को लार्जली इग्नोर कर रहे हैं कौन, एमिल डरकीम. क्रिटिक्स को ये शायद बहुत पसंद नहीं आ रहा है. दे आर नॉट रिजेक्टिंग एज सच, रादर दे आर सेइंग इट इज ओवर इंथुजियास्टिक. ये ओवर इंथुजियास्टिक अटेम्प्ट है. एक मिनट देखिए प्रवीण. इट इज ओवर इंथुजियास्टिक दैट यू आर सेइंग कि सोशल कॉजेस, सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड विच इज हाईली पर्सनल एक्ट. ऐसा कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं. एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, दे आर ट्राइंग टू सप्लीमेंट ऑन द थियरी ऑफ डरकीम कि ये जो एक्सट्रीम सोशल रियलिज्म है कि आप सोशल फोर्सेस को, सोशल स्ट्रक्चर को बता रहे कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड. while doing so, perhaps ऐसा तो नहीं कि आपने पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल विश, पर्सनल चॉइस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है. ऑन दीज ग्राउंड्स वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज. बट यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. दीज 4 टाइप्स आर क्लियर. ईच वन ऑफ यू शुड गिव फीडबैक, तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा. देखिए कुछ लोग का फीडबैक आया है कि क्लियर है, बाकी लोग का कोई फीडबैक नहीं आया. सो वंस यू विल से कि यस इट इज क्लियर, देन आई विल प्रोसीड फर्दर ऑन दिस क्रिटिसिज्म पार्ट. पहला देखिए जो क्रिटिसिज्म है दैट इज बीइंग गिवन बाय स्कॉलर नोन एज मॉरिस. और मॉरिस बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करिए. देखिए मॉरिस का कहना है कि आपका ये कहना कि सोशल फोर्सेस, सोशल स्ट्रक्चर, वहां पे कुछ ऐसे करंट होती हैं जिनको आप सुसाइडोजेनिक करंट कर रहे थे. एंड दीज सुसाइडोजेनिक करंट, सच सोशल फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन सोशल स्ट्रक्चर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू कमिट सुसाइड. क्या ये बहुत ही एग्जैगरेशन नहीं है? बहुत एग्जैगरेट नहीं कर दिया आपने? सुसाइड कोई कॉमन डिसीजन नहीं है, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. रोज रोज चांस नहीं मिलता. देखिए
इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रोज सुसाइड करते हैं, मतलब एक बार आप मूड बनाते हैं करने का, और क्या मतलब इसके पीछे मतलब सब सोसाइटी ही है। यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना इन हाईली इम्पर्सनल मैनर, कि पर्सनल की कोई विश नहीं है, पर्सनल के कोई मोटिव नहीं है, मतलब पर्सनल जो मोटिव या पर्सनल जो विश है वो सब्सिडरी हैं। जब आप बोल रहे थे सोशल डिटर्मिनिज्म एंड साइकिक प्रीडिस्पोजिशन, लार्जली यू गेव मोर इंपॉर्टेंस टू सोशल डिटर्मिनिज्म, सुसाइडोजेनिक करंट, लेस इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल। बट इतना पर्सनल एक्ट, इतना इंपॉर्टेंट एक्ट जो शायद जीवन में आप एक ही बार लेते हैं, क्या आप इस एक्ट को इतने इम्पर्सनल तरीके से करेंगे? इस बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश की मॉरिस ने। एंड व्हाट ही डिड, ही एडॉप्टेड अ वेरी न्यू, ही एडॉप्टेड अ वेरी इनोवेटिव टेक्निक, और उस इनोवेटिव टेक्निक को बोले साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम। जैसे आप देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, इसको बायोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं। आप देखते हैं कि ऑर्गन फेलियर, क्या फूड था उसमें, फूड डाइजेस्ट था या डाइजेस्ट नहीं था, इस तरह की चीजें देखते हैं डेड बॉडी के ऊपर, कुछ कुछ करते हैं आप, दैट इज बायोलॉजिकल ऑटोप्सी। बट व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू। एंड व्हाट इज दैट न्यू? दैट न्यू आई एम रिफरिंग एज, और मॉरिस इज रिफरिंग एज, दैट न्यू इज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब क्या है? जैसे बायोलॉजिकल ऑटोप्सी में आप रेशे रेशे उधेड़ देते हैं बायोलॉजिकल पार्ट के, ऑर्गेनिज्म के, और आप देखने की कोशिश करते हैं कि जो रियल कॉज रहा होगा डेथ का, वो बायोलॉजिकल कॉज क्या रहा होगा। डॉक्टर्स आपकी बॉडी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ रिसर्च करके ऐसा फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में दोस्तों यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी, उसके मोटिव्स क्या रहे होंगे, पर्सनल मोटिव्स, जब वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा होगा, जब उसने किया होगा। सो व्हाट वाज हिज मेंटल स्टेट, ये जानने की जो कोशिश है, दैट इज आई एम रिफरिंग एज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। बट वो पर्सन तो जा चुका है, ही इज नो मोर, वो तो नहीं है यहाँ पे। तो कैसे आप जानेंगे? आप उसके किसी क्लोज फ्रेंड से जानेंगे, उसके किसी क्लोज रिलेटिव से जानने की कोशिश करेंगे, उसके पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि उन दिनों वो क्या सोच रहा था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, कैसे थॉट आ रहे थे उसके दिमाग में, खाना खाता था तो क्या बोलता था। मतलब ऐसा करके आप उसके माइंड को डिमिस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सुसाइड जिस दिन उसने किया उसके 1 महीने पहले से वो इस बारे में सोच रहा था, ऐसे थॉट उसके माइंड में आ रहे थे। मतलब वो उसका कॉन्शियस डिसीजन था। ही स्टेड विद दिस आइडिया, ही कैरीड दिस आइडिया। और दोस्तों हो सकता है कि रिलेटिव से या फ्रेंड से उतना क्लियर डाटा ना मिले, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। बट ऐसे बहुत ही बेचारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सुसाइड करने जाते हैं, वहां भी फेल हो जाते हैं, वहां भी नहीं कर पाते। लेकिन असल ये फेल्ड केसेस ऑफ सुसाइड, यू ट्राइड बट समहाउ इट कुड नॉट गेट मैटेरियलाइज। तो जीवन में तो फेल हो ही गए थे, उसके बाद आपने सोचा क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, सुसाइड में भी फेल हो गए बेसिकली। ऐसा देखिए, हियर आई एम सेइंग सच केसेस आर आइडियल केसेस, जिसमें आप उस पर्सन की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कर सकते हैं, जिसमें उस पर्सन के माइंड को आप डिकोड कर रहे हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि व्हाई यू डिड इट, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड, व्हाई यू वांट टू कमिट सुसाइड। और जब आपने ऐसी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की ऐसे लोगों की, उनके रिलेटिव से पूछ के या उनसे खुद पूछ के जिनके केसेस फेल हो गए थे, व्हाट यू फाउंड कि ये कोई इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है कि एक दिन सुबह आप सो के उठे, जूस पिया और सोचा कि चलो आज सुसाइड कर लेते हैं, चलो आज मूड बन गया, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ फिनोमिना कि सडनली यू मेड अप योर माइंड दैट यू विल कमिट सुसाइड। यू कैरीड दिस आइडिया, यू कैरीड दिस आइडिया फॉर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 2 सालों से आप इसके बारे में सोच रहे थे, टाइमिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। यू वेटेड फॉर द राइट टाइम, यू हैड ए सुसाइडोजेनिक कैरियर, आपके साथ एक सुसाइडोजेनिक कैरियर रहा है। आपने 10th के बाद भी ट्राई किया था बट नहीं हो पाया, उसके बाद आपने यूपीएससी का जब एग्जाम कर रहे थे उसके बाद भी आपने ट्राई किया, नहीं हो पाया, और तीसरी बार हो गया। मतलब थ्रू आउट दीज ईयर्स यू कैरीड ए सुसाइडोजेनिक कैरियर, इट वॉज देयर विथ यू,
इट वॉज देयर विथ योर साइके. इट इज नॉट लाइक दैट कि बस सोसाइटी से फोर्स आया और आपने क्या किया, सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है. सो दे आर सेइंग डर्कीम largely ignored such strong personal motives. So social factors, Morris is not saying they are not there, but ये जो ओवर enthusiasm है आपका कि आप बोल रहे हैं कि जो डिटरमाइनिंग कॉज है वो सोसाइटी से ही आ रहा है, बट इस पर्सन के केस में दिस पर्सन इज कैरिंग दिस आइडिया सिंस लास्ट 6 years, सिंस लास्ट 7 years, एंड फाइनली ही गॉट सक्सीडेड. सो यू कैन नॉट से कि ऑलवेज या मेजर फोर्स कहां से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है. Individual factors, individual psyche, individual motive, they also play a significant role when a person commits suicide. That is one argument from psychological perspective that is being given by Morris. ये criticism friends समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि Morris क्या criticism दे रहे हैं कि कैसे psychological factors, psychological motives, your mental state, that is also very crucial. That why you decided to take your life on your own, we simply cannot say it is largely determined by society. That is one criticism given by Morris. This thing is clear or not? ये बात समझ पा रहे हैं? ये जो क्रिटिसिज्म मैं समझा रहा हूं ये दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? प्लीज टेल मी, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. देन सेकेंड जो लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म है दैट इज गिवन बाय डेविड फिलिप. और देखिए डेविड फिलिप ऐसा बोल रहे हैं कि इमिटेशन भी एक फैक्टर हो सकता है, इमिटेशन भी एक रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ विच पर्सन्स आर कमिटिंग सुसाइड. सो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई फेमस सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेता है जस्ट इन ऑर्डर टू इमिटेट दैट पर्सन. बहुत सारे यंग यूथ भी क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जो उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं. तो इन केस ऑफ सेलिब्रिटी सुसाइड्स मेनी टाइम इट वाज फाउंड दैट सच केसेस वर वेरी हाई बेसिकली. such cases of suicide they suddenly increases when any famous celebrity commits suicide, जहां पे imitation is a factor. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रियल लाइफ का, तो आपकी फैमिली में सपोज अगर ऐसा रहा है कि अगर बुआ ने सुसाइड कर लिया था, फादर की सिस्टर ने, जब उन्हें कंपेल किया गया था किसी से मैरिज करने के लिए, वो किसी और से मैरिज करना चाहती थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और ऐसी स्टोरी फैमिली में है. सो जो नेक्स्ट जनरेशन की गर्ल्स हैं कई बार वो ऐसा थ्रेट दे सकते हैं कि मैं भी बुआ की तरह क्या करूंगी, सुसाइड कर लूंगी, और उन्होंने कर भी दिया बेसिकली. दे जस्ट ट्राई टू इमिटेट दैट लेडी इन फैमिली हु ड्यूरिंग सच सिचुएशन कमिटेड व्हाट, सुसाइड. So they just tried to imitate that thing, repeated the same thing. Here I am saying, imitation भी एक factor हो सकता है, और just while imitating some famous personalities, some famous celebrity who committed suicide, you were identifying yourself with that person to that extent that while imitating that person, you also committed suicide. So यहाँ पे ये ऐसा बोल रहे हैं कि imitation भी एक factor हो सकता है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं. उस फैक्टर को कंप्लीटली इग्नोर किया है किसने, डर्कीम ने, कंप्लीटली रिजेक्ट किया है डर्कीम ने. ये लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म समझ पा रहे हैं नहीं दोस्तों? दिस लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? कि कैसे बोलने की इमिटेशन भी एक फैक्टर हो रहा है. थर्ड लाइन ऑफ जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, ऐसा बोल रहे हैं हेनरी और शॉर्ट. हेनरी और शॉर्ट बोल रहे थे कि डर्कीम एक सिचुएशन के बारे में बता रहे थे, एनोमी. एनोमी एक ऐसी सिचुएशन है जब सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल रेगुलेशंस, दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल. दैट सिचुएशन वाज बीइंग रिफर्ड एज एनोमी. जब भी एनोमी होगी तो सोसाइटी का जो रेगुलेशन है आपके ऊपर, सोसाइटी का जो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो कम हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब देखिए ऐसी सिचुएशन में सब सुसाइड ही करेंगे ऐसा नहीं है. जब सोशल नॉर्म्स या सोसाइटी का जो रेगुलेशन है आप पे कम हो जाएगा तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस क्राइम हो सकता है. जब एनोमी लाइक सिचुएशन बढ़ेगी, जब नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन होगा, कंसेंसस अबाउट सोसाइटल नॉर्म्स कम होगा, तो हो सकता है कि क्राइम रेट क्या हो जाए,
इंक्रीज हो जाए. सो हेनरी एंड शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जब ये ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं तो इंडिविजुअल के पार्ट से दो तरह का रिएक्शन आ सकता है. ऐसे इंडिविजुअल जिनमें वीक इंटरनल कंट्रोल है, जो वीक है अंदर से, जब सोसाइटल नॉर्म्स वीक हो गए हैं, डाइल्यूट हो गए, दे में इंडल्ज इनटू क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज. दैट कैन बी वन कॉन्सिक्वेंस. बट दोज हु हैव हाई इंटरनल कंट्रोल, दे में टेक अप दिस एक्सट्रीम स्टेप नोन एज सुसाइड. ऐसा बोल रहे हैं हेनरी एंड शॉर्ट. सो दे आर सेइंग कि इंटरनल कंट्रोल वाली बात को लार्जली डरकीम ने इग्नोर किया है कि पर्सन विथ हाई इंटरनल कंट्रोल ड्यूरिंग एनोमिक सिचुएशन दे आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड. पर्सन विद वीक इंटरनल कंट्रोल, जब सोसाइटल नॉर्म्स नहीं रहेंगे तो कुछ भी करेंगे बेसिकली, सही गलत, एथिकल अनएथिकल, मोरल इमोरल, कोई मतलब नहीं है. बाय हुक बाय क्रुक दे विल ट्राई टू डू समथिंग. कैसे भी करके इसका फायदा उठाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे, बने रहने की कोशिश करेंगे. दीज टू फैक्टर्स कैन बी देयर. वीक इंटरनल कंट्रोल वाले लोग सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. वीक इंटरनल कंट्रोल वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. जो हाई इंटरनल कंट्रोल वाले लोग हैं उन्हीं की एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज वन डिस्टेंट पॉसिबिलिटी दैट दे विल कमिट सुसाइड. ऐसा हेनरी एंड शॉर्ट बोल रहे हैं. देन नेक्स्ट लेवल ऑफ जो क्रिटिसिज्म है, दैट इज ऑन द डाटा. डाटा दैट इज बीइंग कलेक्टेड बाय डरकीम. ये डाटा कहां से ला रहे थे? जो डाटा कलेक्ट किया है ऑन 26,000 केसेस ऑफ सुसाइड, फ्रॉम वेयर दैट डाटा केम. वो डाटा कहां से आया? दैट डाटा केम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. और ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या सच में हाईली रिलायबल है या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला इंडिया के केसेस में ऐसी अननेचुरल डेथ को रजिस्टर करने वाला जो ऑफिस है वो एसडीएम का ऑफिस है. यूरोपियन केस में ऐसी अननेचुरल डेथ को रजिस्टर करने वाला जो ऑफिस है दैट इज कॉरोनर ऑफिस. देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन देयर वाज हाई रेट ऑफ फार्मर सुसाइड इन विदर्भा, हाई रेट ऑफ फार्मर सुसाइड इन तेलंगाना, in some cases in Punjab also, and there were orders from office of chief minister to these SDMs कि जहां तक हो सके इनको सुसाइड डेथ की तरह से रजिस्टर न किया जाए, एक्सीडेंटल डेथ दिखा दो. अगर आप सुसाइड की तरह से दिखाएंगे तो इलेक्शन के टाइम रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जा सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वर इंस्ट्रक्शंस दैट यू शुड नॉट रजिस्टर इट एज ए फार्मर सुसाइड. You should register it as an accidental death, any other form of death. So what I'm saying, there can be some tendency on the part of administration. There can be tendency on the part of ruling elite to hide real data on what? Suicide. So क्या ये official statistics, ये official data जो डरकीम कलेक्ट कर रहे हैं from the coroner's office, जिसके बेसिस पे ये conclusions draw कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये जनरलाइजेशंस बना रहे हैं, क्या ये सच में रिलायबल है उतना? कई बार ऐसा होता है कि मर्डर का केस है बट पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वो प्रूव नहीं कर पाए, कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं ला पाए, और फाइनली उन्होंने रजिस्टर कर दिया कि ये क्या है, सुसाइड है. सो देखिए ये जो डाटा है कि एविडेंसेस नहीं मिले, कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं मिले, आप नहीं प्रूव कर पाए कि मर्डर का केस है, आपने पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर कर दिया कि ये सुसाइड का केस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, या कई बार आपको इंस्ट्रक्शंस है कि आप सुसाइड की तरफ से इसको रजिस्टर मत करिए, इलेक्शन के टाइम पे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जा सकता है कि इतने सारे फार्मर्स ने इस साल सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. सो ये यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या गवर्नमेंट डाटा? होता ही है ऐसा, दैट आई एम नॉट सेइंग, दैट आई एम नॉट सपोज टू से ऑल्सो. व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है इट कैन बी मैनिपुलेटेड, जिसको रिलाई करके डरकीम अपना सारा कंक्लूजन दे रहे हैं. दैट इज वन क्रिटिसिज्म बाय एटकिंसन. ये बात समझ पा रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल वाली दोस्त आपने पूछा है, मैं बता रहा हूं कि देखिए जब बाहरी कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप अपने इंटरनल कंट्रोल से चलेंगे. एक आपका इंटरनल कंट्रोल भी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपके अंदर है.
ऐसा नहीं कि ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक कॉप नहीं है तो आप जंप कर ही जाएंगे। आपके अंदर भी कोई बात है कि अगर रेड लाइट है, ट्रैफिक कॉप है या नहीं, आपको वहां पे रुकना है। बट बहुत लोग नहीं रुकते हैं और जंप कर जाते हैं बेसिकली। बहुत लोग रुकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है उनका अपने पर। सो दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल। हेनरी और शॉर्ट ऐसा बोल रहे थे कि जब नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन होगा, जब सोसाइटी के पार्ट से जो एक्सटर्नल कंट्रोल है वो वीक होगा, डाइल्यूट होगा, ये एब्सेंट हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। जब एक्सटर्नल कंट्रोल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उस समय एक दूसरा फैक्टर काम करेगा, आपका अपना इंटरनल कंट्रोल। हेनरी एंड शॉर्ट बोल रहे हैं उस समय इकोनॉमी की सिचुएशन में जब एक्सटर्नल कंट्रोल काफी कम हो गया, डाइल्यूट हो गया, जो लोग वीक इंटरनल कंट्रोल वाले लोग हैं वो इलीगल एक्टिविटीज में, इमोरल एक्टिविटीज में, अनएथिकल एक्टिविटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे। बट ये जो पॉसिबिलिटी डरकीम बता रहे थे कि इकोनॉमिक सुसाइड होगा, दैट कैन बी एसोसिएटेड विद दोज पीपल हु हैव हाई इंटरनल कंट्रोल। जिनमें हाई इंटरनल कंट्रोल है वो ऐसे नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन के टाइम पे दे माइट एंड अप देयर लाइफ, दे आर दोज पीपल हु विल कमिट सुसाइड। इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं हेनरी एंड शॉर्ट, जिसको परहैप्स इग्नोर किया था किसने, एमिल डरकीम ने। ये बात समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? दीज फोर क्रिटिसिज्म, इसी पे एक और क्रिटिसिज्म दिया है डगलस करके एक स्कॉलर है, और डगलस का क्या कहना है कि डरकीम ये जो बात बोल रहे हैं कि हाई रेट ऑफ इंटीग्रेशन, लो रेट ऑफ सुसाइड, ऐसा समाज जहां पे हाई रेट ऑफ इंटीग्रेशन है वहां पे लो रेट ऑफ सुसाइड है, ये जो अपने डाटा से कंक्लूड कर रहे हैं डरकीम। ऐसे समाज जैसे कैथोलिक के केस में डरकीम ने पाया, वॉर टाइम पे डरकीम ने पाया कि उस समय सुसाइड रेट कम रहे। डगलस बोल रहे हैं कि अगर सोसाइटी हाईली इंटीग्रेटेड है तो जो डाटा वहां से मिल रहा है वो बायस डाटा है, सही डाटा नहीं है। सही डाटा कैसे नहीं है? आपने गांव में गए पूछने कि भाई क्या हुआ, लड़की की डेथ कैसी होगी, बोले कि वो गए थे सुबह खेतों की तरफ, कीड़े ने काट लिया, सांप निकल गया, काट लिया, जल्दी जल्दी हमने उसे क्या किया, डेथ रिचुअल्स कर दिए। पोस्टमार्टम वगैरह गांव में इतना नहीं होता। ये आपने बताया कि वॉशरूम गए थे, गिर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, डेथ हो गया। मतलब आप छुपा रहे हैं बेसिकली। हाईली इंटीग्रेटेड सोसाइटीज में रियल डाटा रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है, छुपाया जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर जिन रूरल सोसाइटीज से अगर अपने डाटा कलेक्ट भी किया है तो रियल डाटा ही नहीं है वो। दैट डाटा इटसेल्फ इज नॉट रियल, दैट डाटा इटसेल्फ इज बायस, वेयर पीपल हैव टेंडेंसी टू हाइड द डाटा। सो डगलस ऐसा बोल रहे हैं कि इनबिल्ट बायसनेस है, इनबिल्ट बायसनेस है रूरल सोसाइटी से जो डाटा आ रहा है और अर्बन सोसाइटी से जो डाटा आ रहा है। रूरल सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक टेंडेंसी है कि अपना खुद का सामाजिक नियंत्रण है, उसे के थ्रू आप क्राइम को क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। पंचायत बैठती है, पुलिस को नहीं बुलाया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में गांव में पुलिस को बुलाया था। शहरों में एक इनबिल्ट बायस है, हर जगह पुलिस अपना नंबर देके आपको रखती है, 100 नंबर हमारा नंबर है, कभी भी कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद भले आपको लगे कि आपने गलती की थी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप कॉल तो कर ही देते हैं, कॉल कर देते हैं। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अर्बन एरियाज में शायद रिपोर्टिंग ज्यादा है, रूरल एरियाज में शायद रिपोर्टिंग ऑफ सच डेथ इज लेस। सो एक बिल्ट इन बायस है, जिस डाटा के बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिस डाटा के बेसिस पे ये कंक्लूजन कर रहे हैं, वो डाटा ही बायस डाटा है। दैट इज बीइंग हाईलाइटेड बाय डगलस। सो ये सारे जो क्रिटिक्स हैं, ये डरकीम की जो स्टडी है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं या उसकी इनएडिक्वेसीज को बाहर निकाल रहे हैं। अदरवाइज थ्रू दिस स्टडी डरकीम इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हाउ सोशल डिटर्मिनिज्म या सोशल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए सोशल फैक्ट लाइक सुसाइड। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट फ्रेंड्स? दिस मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड?
यहां तक कोई अगर डाउट है तो प्लीज गिव योर फीडबैक। अभी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अभी आप लोग को सही से टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देन आई विल डिस्कस 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, सारे डिस्कस करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विद द टाइम आई विल डिस्कस अदर्स ऑल्सो, बट टुडे आई विल डिस्कस these 2-3 questions that have been asked in previous year UPSC examination. यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है, then I will start with this discussion part about previous year question paper. यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। So okay, these are the questions on your screen that you should see. पहला क्वेश्चन है कि what do you mean by the concept suicide as explained by Emil Durkheim? Discuss its scope and critique. This is the question. Second is, suicide as a social fact is an illustration of Emil Durkheim's views on society and his methodology. What kind of methodology? Positivistic methodology. Discuss. Indebtedness is one of the serious issues leading to farmer suicide. Discuss reasons and suggest solutions. कि institutional credit facility in Indian rural areas, they are present or they are absent. With regard to that, you should discuss, you should analyze this issue of indebtedness in Indian agricultural sector and try to relate with Durkheimian concept of suicide. So देखिए, एक 3 क्वेश्चन मैं आपको एक असाइनमेंट के फॉर्म में दे रहा हूं। इन नेक्स्ट क्लास 1 by 1 I will discuss these questions. You should just go through these 3 questions. First, try to understand what you will write. Don't try to write. Do some kind of lateral thinking. कि whatever I discuss in these classes, on the basis of that discussion, you go through these 2 lectures and try to understand कि on the basis of these 2 lectures of 3 hours, whether you are able to solve these 3 questions or not. There might be 10 questions in previous year question paper, but ये 3 selected question मैं आपके लिए ले रहा हूं जो बाकी सारे questions को भी cover कर रहे हैं, और थेरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस हैं, ये एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से भी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने बस एक थेरेटिकल टॉपिक उठा लिया और उसी को आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं। आई चूज दीज टॉपिक्स वेरी केयरफुली, या इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही केयरफुली चूज किया है, जिससे आपका जो थेरेटिकल अप्रोच है विद रिगार्ड टू डरखीम, इट शुड गेट क्लियर। एप्लीकेशन इसका इन केस ऑफ फार्मर सुसाइड, दैट शुड ऑल्सो गेट क्लियर। मेथोडोलॉजी को लेके इन्होंने पूछा है, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है। सो देखिए, 3 मास्टर क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया, जिनसे वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ यू हैव डेवलप्ड, दैट you will be able to use in these 3 questions. So these 3 questions you should take as an assignment. In next class, 1 by 1, I will discuss with you people what to write and how to write. देखिए, whenever you try to write answer, 2 लेवल पे आपको डिफिकल्टी आती है। पहला डिफिकल्टी ये आती है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, ये आपको नहीं पता है। और दूसरा ये है कि आपको जो भी पता है आप सोचते हैं वही लिख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, वे टू राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको मैं आपको अलग से आंसर राइटिंग सेशन में बताऊंगा। पहली लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सिंस आप में से बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं, दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, पहली लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको आता है कि लिखना क्या है, एक्चुअली कंटेंट क्या होना चाहिए। और दूसरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि अगर कुछ आता है तो उसको कहीं भी लिख देते हैं। मतलब अगर डरखीम पे पूछा है, सुसाइड पे पूछा है, तो जो आ रहा है लिख देता हूं। एग्जामिनर देख ले कि मतलब कि मेथोडोलॉजी इसमें दिख रही है नहीं दिख रही है, एग्जामिनर देख ले कि एप्लीकेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एग्जामिनर खुद डिस्कस कर ले, एनालाइज कर ले। मतलब मैंने लिख दिया और खुद को नंबर भी आप दे लेते हैं कि अगर 10 नंबर का है तो 6 तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने सब लिख दिया है बेसिकली। सो यू डोंट नो कंटेक्स्ट, सो कंटेंट एंड कंटेक्स्ट, व्हाट टू राइट एंड वेयर टू राइट, हाउ टू राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग में, दैट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब अंडरस्टैंड द क्वेश्चन में एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब अंडरस्टैंड द क्वेश्चन में भी 3 चीजें हैं। पहला, फोकस क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन के अगर सब पार्ट हैं, अगर 2 या 3 पार्ट हैं, जैसे सेकेंड जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, यू शुड ट्राई टू ब्रेक दीज 2 पार्ट्स। एंड इफ इज देयर एनी टेल वर्ड, टेल वर्ड से मेरा मतलब यह है कि लास्ट में ये जो लिखा हुआ है डिस्कस, इसका मतलब क्या होगा, या अगर कोई टेल वर्ड है एक्सप्लेन, उसका मतलब क्या होगा। यहां पे डिस्कस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे भी डिस्कस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे भी देखिए इंसिडेंटली इन तीनों क्वेश्चन में टेल वर्ड डिस्कस ही है, और उसके बराबर हिंदी में जो वर्ड है वो है चर्चा कीजिए। अगर यही होता डिस्क्राइब, तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी में जो वर्ड है दैट इज वर्डन कीजिए। अगर यही होता एग्जामिन, इसके अकॉर्डिंग हिंदी में जो वर्ड है वो है परीक्षण कीजिए। तो देखिए कई बार इसी के ऊपर आपको काफी डराया जाता है, खौफ तैयार किया जाता है कि डिस्कस क्या है, इलस्ट्रेट क्या है, इलुसिडेट क्या है, एक्सप्लेन क्या है, ब्रिंग लाइट ऑन क्या है, एग्जामिन क्या है, एनालाइज क्या है, क्रिटिकली। तो व्हाट आई मीन टू से कि योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इफ देर आर सम सब पार्ट्स, यू शुड ब्रेक दो सब पार्ट्स, एनालाइज और अंडरस्टैंड ईच सच पार्ट। और उसके बाद जो भी टेल वर्ड है, इन टेल वर्ड्स को एक अलग 30 मिनट के सेशन में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के पहले, जब इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा, 1 by 1 मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे 22-23 या उससे भी ज्यादा सच वर्ड्स यू विल फाइंड इन यूपीएससी क्वेश्चन पेपर। अगर जीएस का भी आप देख लें, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी देख लें, तो टोटलिटी में ऐसे 25 से ज्यादा वर्ड्स हैं जो बार बार यूज हो सकते हैं। इन सबको ऐसा माइंड में कंक्रीटाइज कर पाना आपके लिए मुश्किल है, बट कैसे इनको अटेम्प्ट करना है, दैट आई विल डिस्कस विथ यू पीपल। नेक्स्ट क्लास के पहले हाफ एन आवर आई विल एक्सप्लेन यू पीपल हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर्स इन सोशियोलॉजी, एंड आई विल डिस्कस 1 by 1 दीज 3 क्वेश्चंस। आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट तब तक के लिए बस आप एक लैटरल थिंकिंग करिए, एक मेंटल एक्सरसाइज करिए कि जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, विथ हेल्प ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग वेदर यू पीपल विल बी एबल टू अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आपकी रीच में है या नहीं है, हाउ टू राइट दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।